अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर क्या होते हैं? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता होगा? ऐसे तो स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ। वन पे स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ मैं। कोई नहीं बताएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी आपको। मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि सर ने बताया, वो है इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है? ज़हनी सेहत। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? कोई बताना चाहेगा? अगर आप लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे, फिर बाद में आपके टीचर्स बोलेंगे कि आपने इंटरैक्ट क्यों नहीं किया, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। Mental health refers to our overall emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Good mental health means feeling good about ourselves, being able to cope with life's challenges, having healthy relationships, and being able to work or study productively. Just like physical health, mental health is important at every stage of life, from childhood to adulthood. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ है कि हमारा साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग का जो ऑल टुगेदर कॉम्बिनेशन है, यानी हर एक चीज़ बैलेंस में है, उसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। कभी कभी ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस भी हो जाती हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई they are disbalanced. One of them is social media. Today we'll talk about social media primarily. So social media refers to online platforms and apps that allow people to create, share and interact with content in each other. Examples include Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. These platforms let you post pictures, videos and updates, as well as comment, like and share what others post. Social media is used for staying in touch with friends and family, following news and trends, promoting business and expressing yourself. तो सोशल मीडिया तो सभी को पता है कि क्या होता है। A lot of the people here must be on some social media. Instagram है, Facebook है, right? So you are all aware कि what social media exactly is. Now let's move on. Let's see how social media affects our mental health. हमारी जो mental health है, उसके ऊपर social media का क्या असर होता है। जो आज मैं चीज़ों के बारे में बात करूंगी, most of them are negative effects on social media. There are positive effects also that we know about. Today I am only going to talk about the negative effects. So first of all is wastage of time. For a student, time is a very important commodity because there are so many things to do. जैसे आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, मेकिंग हैबिट्स, इंटरेस्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, all these things are what we do in our teenage life. But social media takes up all our time, resulting in decrease in our productivity. Right? Another negative effect of social media is decrease in school performance. Because it takes up so much of our time, we have lesser time to study. Young people are more sensitive to distractions, have more difficulty in self-monitoring and self-control. Increased use of social media and endless scrolling can lead to lower impulse control, productivity decreases, and time spent on studies reduces, leading to poor performance, which can lead to stress and parents' dissatisfaction. Negative social comparison. What is negative social comparison? Negative social comparison is to compare ourselves with others and consider ourselves lesser. हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है या हम ही कम हैं दूसरों से, right? So this is another thing that social media promotes. Adolescence is a period of heightened susceptibility to peer influence. ये ऐसा एज होता है हमारा adolescent age, teen age, जिसमें कि हम अपने आसपास के लोगों से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली भी होते हैं और नेगेटिवली भी होते हैं। Social media forces us to compare our lives with others, which promotes unhealthy comparisons, feeling inadequate about ourselves and our lives, making us more vulnerable to stress and unhealthy competition. This gives way to negative thoughts about self and lower self-esteem. What is self-esteem? Self-esteem is our confidence, our belief in ourselves that we can do something.
ठीक है, वो जो एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव होता है अपने ऊपर कि मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म। कोई भी काम करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को दूसरों के कंपेयर करते रहते हैं एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स लेसर देन अदर्स, तो क्या होगा, सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली हमारी लोअर होगी। Dissatisfaction with our own selves. Social media promotes unrealistic expectations and goals influenced by the people we see online. ऑनलाइन जो लोग होते हैं, हमेशा उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं, हमेशा वो अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में एक्साइटिंग और हैपनिंग हो रहा होता है, राइट? जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। So what do? Someone on Instagram has expensive branded clothes or a vacation in Bali or a better group of friends. This creates a false perception that others have better lives than our lives, leading to dissatisfaction and lack of appreciation for our own lives, which can result in feelings of sadness, hopelessness, giving way to further mental health issues. Another thing is anxiety. Anxiety भी एक बहुत common issue है, सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने experience भी किया होगा। एंग्जाइटी क्या होती है? अगर हम आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करें तो एंग्जाइटी होती है घबराहट, ठीक है? घबराहट, दम घुटना, अनकंफर्टेबल फील करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंग्जाइटी में आती हैं। यंग पीपल आर स्पेशली सेंसिटिव टू प्रेज एंड रिजेक्शन फ्रॉम अदर्स। ये जो एज स्टेज होता है, इसमें दे मोर ससेप्टेबल, जैसा मैंने बताया कि हम पीयर इन्फ्लुएंस से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम प्रेज और रिजेक्शन से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। किसी ने अच्छा कह दिया तो भी हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी ने बुरा कह दिया तो भी हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है? सो social media platforms take advantage of this by using likes and followers to keep them engaged, which can lead to unhealthy and excessive use. Negative feedback, not getting the validation that is expected in the form of likes, followers, etc., not getting the required attention can lead to anxiety. Young people start to struggle to get more attention and validation. This further puts them in an anxiety loop. हम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, फिर हम इंतज़ार में होते हैं कि अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, फिर कभी अच्छा रिएक्शन आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है? फिर हम एक कंपटीशन में पड़ जाते हैं कि आई हैव टू बी बेटर, आई हैव टू पोस्ट मोर पिक्चर्स, आई हैव टू गेट मोर लाइक्स, है ना? तो वो एक कांस्टेंट हमको एंग्जाइटी और घबराहट के लूप में ले जाती है वो चीज़, ठीक है? Another thing is bullying. So bullying क्या होता है? ऑनलाइन बुलिंग भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, स्कूल्स में भी होती है और भी कई जगहों पे, यानी कि किसी को हरास करना, किसी को तंग करना, किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर देना इस बुलिंग। सो सोशल मीडिया प्रोवाइड्स एन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सेस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट एंड पीपल ऑनलाइन। सोशल मीडिया पे हम हर एक तरीके से के लोगों से मिलते हैं, कोई उसमें बफर नहीं होता, कोई इसमें फिल्टर नहीं होते, है ना? किसी के साथ भी हम कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी लोग हमारे साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो दैट पुट्स अस इन अ मोर डेंजरस स्पॉट, यानी कि कोई भी हमको बुली भी कर सकता है, किसी भी तरीके की बात कर सकता है, ठीक है? यंग पीपल समटाइम्स हैव टू फेस बुलिंग, ट्रोलिंग, हेट एंड इवन क्राइम ऑनलाइन. In the emotionally vulnerable developmental stage of adolescence and young adulthood, these negative experiences can become difficult to cope with. So all these things, pressures, anxieties, bullying, lack of healthy relationships, and lack of knowledge how to cope with these challenges, all these things can lead to serious mental issues जैसे कि depression. ठीक है? Depression is a serious mental health illness. And there are many ways to treat depression, but it's a serious issue. और जो भी ये सारी चीज़ें हमने नेगेटिव इफेक्ट्स डिस्कस किए सोशल मीडिया के, अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि ये हमको डिप्रेशन में ले जाए. डिक्रीज अटेंशन स्पैन. ब्रेन इज अ वेरी इलास्टिक एंड अडाप्टेबल ऑर्गन. एंडलेस कंटेंट एवरी फ्यू सेकेंड्स, जैसे रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, content designed to attract attention and give you dopamine boost ultimately results in lowering your ability to focus on anything for long. The natural attention span is lower to adjust to the incoming stimuli. ब्रेन क्या होता है हमारा? बहुत एडजस्टेबल होता है, बहुत इलास्टिक होता है. जिस तरीके का कंटेंट हम देखते हैं या जिस तरीके के हमारे ये सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से ब्रेन एडजस्ट कर लेता है. इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर किसी की खुदा न खास्ता एक आंख में इंजरी हो जाए, इफ समवन हैज़ ओनली वन आई लेफ्ट टू सी,
So what happens in the beginning that you see the world in a very two-dimensional way. बहुत कागजी सी दिखती है दुनिया, लेकिन टाइम के साथ साथ ब्रेन एडजस्ट कर लेता है और हम एक आंख से ही 3D देखने लग जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स ब्रेन्स एबिलिटी टू एडजस्ट. अब हम अगर कॉन्स्टेंटली रील्स देखते रहेंगे, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, हर एक कुछ सेकेंड्स में कंटेंट चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारी ब्रेन की जो एबिलिटी है फोकस करने की किसी चीज़ के ऊपर कुछ टाइम के लिए, वो टाइम हमारा रिड्यूस होता रहता है. ठीक है, अब हमारा अटेंशन स्पैन अगर रिड्यूस होता रहेगा तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे. ठीक है, सो लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन. कई लोग सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत अपनी नींद भी ज़ाया करते हैं, है ना. जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अब उनको स्कूल तो जाना ही पड़ता है, पेरेंट्स देख रहे हैं, काम भी करना ही पड़ता है दिन भर, तो फिर रात का टाइम बचता है, सो दे कॉम्प्रोमाइज देयर स्लीप एंड दैट लीड्स टू फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि लैक ऑफ अटेंशन. सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो जाता है. Experts deem social media addiction as comparable to alcohol addiction. जो लोग रिसर्च करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के इफेक्ट्स के ऊपर, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो अल्कोहल के एडिक्शन के जैसा ही है. दैट मीन्स इट्स वेरी डेंजरस एंड वेरी detrimental to your mind. It works like any other addiction. Spending time on social media feels like a positive experience which signals the release of dopamine and which is a feel-good hormone. Brain associates this feeling good with social media. Once the dopamine wears off, you are inclined to go back to social media to get the same experience again, leading to addiction. ठीक है, समझ आ रहा है सब लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? Is anyone listening? Is it interesting? कुछ मजे का लग रहा है, कुछ नया लग रहा है आप लोगों को? आप लोग इंटरैक्ट नहीं करते. मैं इससे पहले एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे मेरे से बात कर रहे थे लोग, आप लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे. चलिए लास्ट में कर देखते हैं और क्या करना है. सो नाउ हमने इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें डिस्कस कर ली. अब हम देखते हैं कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है. इफ समवन इज सीरियसली इन ट्रबल रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ठीक है, किसी को भी ये सारे जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की एक्सपीरियंस हो रही हैं, सबको अपना अपना पता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज टू टेक अ ब्रेक. अपना एक सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. आप टाइम डिसाइड कर लीजिए फॉर 3 months और 4 months और समथिंग लाइक दैट. यू कैन टेक अ ब्रेक जिसमें कि सोशल मीडिया को कंप्लीट शट ऑफ कर लें. ये नहीं करना है कि बीच बीच में चीट करें, हम थोड़ा सा देख लें, 5 मिनट खोल लेते हैं, 5 मिनट अल्टीमेटली becomes 1 hour or 2 hour, तो वो जो चीज करने का है कोई फायदा नहीं है. अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर ब्रेक लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इफ यू आर फीलिंग दैट you have some trouble, you have some issue, तो आप किसी से बात कर लें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, या मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है इसकी वजह से, या कोई और इशू है, तो आप किसी से बात करते हैं. जब आप किसी से बात करते हैं तो एक तो आपका दिल हल्का हो जाता है, और दूसरा आप का जो दोस्त है या फैमिली मेम्बर है वो आपको कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता है. राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक टू समवन व्हेन यू आर इन ट्रबल. Next is work on your relationships. Make your offline relationships stronger. Spend more time with family and friends. Sometimes what happens is कि हमारे जो offline relationships होते हैं वो इतने troublesome होते हैं, वो इतने मतलब वो हमें कुछ positive experience नहीं दे रहे होते, इसलिए हम घूम फिर के social media में पहुंच जाते हैं. शायद पेरेंट्स हर वक्त डांटते रहते हैं, हो सकता है हमारी गलती की वजह से डांट रहे हो, लेकिन वो डांटते रहते हैं तो हमें बुरा लगता है, बहन भाइयों के साथ झगड़ा होता है, दोस्त अच्छे नहीं हैं. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी डू, वी गो टू सोशल मीडिया. ये कोई और हम एस्केप तैयार कर लेते हैं, बट दैट इज ओनली टेम्पररी. उससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है. यू हैव टू अल्टीमेटली लिव विद योर फैमिली, सो यू हैव टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर. एटलीस्ट ट्राई. सीक हेल्प इफ नीडेड. इट्स ओके टू टॉक टू अ प्रोफेशनल इफ यू नीड. अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीरियस इशू है, मैं दोस्तों से बात कर लूँ या फैमिली से बात कर लूँ, तभी भी हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं. इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी काउंसलर की हेल्प सीख करते हैं,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पागल हैं या आपके साथ कुछ सीरियस इशू है। यू कैन टॉक टू समवन टू मेक योर लाइफ बेटर, ठीक है। और एक साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि वो लोगों को हेल्प करता है उनकी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने में, जिससे क्या होता है कि उनकी लाइफ बेटर होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमको हमारी लाइफ को आसान, अभी आप लोगों ने बोला था कि खत्म करने के बाद इंटरैक्ट करेंगे। वॉज इट इंटरेस्टिंग? क्या नई चीज पता चली? समथिंग दैट यू वर सरप्राइज टू हियर कि अच्छा ये भी हो सकता है। एनीवन वांट्स टू से समथिंग? फिर मैं इसे रैंडमली बीच में से उठा के पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई नहीं बोलेगा कुछ? कुछ नहीं होता, मैं भी तो बोल रही हूँ इतनी देर से। एनीवन? चलें ठीक है, कोई बात नहीं। That's all for today. अगर किसी को मुझसे बात करनी हो, ठीक है, पर्सनली, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहती हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपना कार्ड आपकी प्रिंसिपल मैम को दे दूँगी, उनके पास मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगी जिसको भी चाहिए हो। उसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, प्रोफेशनल पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन मेरे कार्ड पे होगी, आप अपने मैम से ले सकते हैं या मैं सर को भी दे दूँगी, ठीक है। सो दैट इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी और जस्ट टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। ऑल राइट देन। Thank you. Was your Kazi, ma'am?